नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार डेस्क का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 26 अगस्त से एक 14 साल की लड़की लिखा माला लापता है। ऐसा माना जा रहा है कि लिखा को ईटानगर से दिल्ली लाया गया है। इस मुद्दे पर स्टार डेस्क का मीडिया ने नॉर्थ ईस्ट के आईपीएस नोडल ऑफिसर रॉबिन हिबू से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं रॉबिन हिबू का फोनेटिक इंटरव्यू। We have with us Mr. Robin Hebu. So, sir, first of all, if you could tell us what is the current action being taken by the Delhi police in the case of the young girl Likha Mala? The moment we got the information, we have activated our crime branch. Senior officer have been increased. We have informed to the Ghaziabad, Gurgaon, Faridabad, or Noida police. All our team are on the job. We are putting everything on the surveillance, trying to find out the detail. We are constant touch with the family members. So we are leaving no stone unturned to locate this case. Right, and there was a mention that she might have been caught by miscreants. So, what exactly, are you referring to? Is this a case of abduction, Mr. Hebu? Yeah. That is what the family has informed us that they got a call. Then she couldn't speak properly. Only said I'm at Delhi. They said no. That's only the last of the we have been told, and we are verifying the fact whether it's a fact or not. Okay, sir, and coming to the fact that this was posted on the Facebook page of the Delhi police, how helpful has the Delhi police for Northeast folks been in spreading messages like this? I'm really happy that you've asked this question. This has become until now I've got more than 6,45,000 people have logged in, and it is one of the favorites for the Northeast, not only for the missing report or anything on crime related. We are uploading all our information on security related, job vacancies, advisories, this Facebook. And we have a very true recent incident of with the help of our Delhi police, this Facebook, one of our missing CRPF Jawan was located. We could report him to his family member. Another girl from Northeast was located with the help of his Facebook. On interrogation, on our inquiry, they told me that their friend, they have found out the notebook. For more or other, they specified them too. And when they use the girl and them played, we still help to locate the girl also. So it is, I would say, it's one of the very, very important tools, not only for police, for everybody to share the information. And as a enforcement authority, is giving us a lot of help information. The public that kind of what is called that. Right, and what about the special helpline that is there for the Northeast people? How much of a response are you getting on that? Could you share any statistics with us? Yeah. We have 466 calls yesterday, and 379 cases have been registered after launching from 14th of February this year. So that is going to be already, I would say, 100 number for the Northeast. In fact, I'm getting a call from other part of the country. Why not it's for all over the country? All right, sir. We do hope that, there will be, in fact, a speedy look into this case. We appreciate your efforts. Thank you so much for joining us today, Mr. Hebu. Before you wind up your case, ask your viewer to please look out for this girl. And I'm sure, because if they see those who are watching, share with your friends so that we can locate her at the earliest time. Thank you. Thank you so much, sir, for joining us today. अरुणाचल प्रदेश भाजपा टीम ने किया करसिंगसा ब्लॉक पॉइंट का दौरा। भाजपा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में होती तो हालात अभी तक सुधर चुके होते। कारसिंगसा सिंकिंग एरिया रोड का NH-52 से पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। हर बार मॉनसून में सड़क की हालत बद से बदतर हो जाती है। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ताई तागाक ने अपनी टीम के साथ कारसिंगसा ब्लॉक पॉइंट का दौरा किया और कहा कि जब से BRTF से कमान लेकर PWD को दी गई है तभी से हालात सही नहीं है। साथ ही राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में होती तो शायद ऐसे हालात नहीं होते। ईटानगर कैपिटल रास्ता को बंदरदेवा से जोड़ता है और ये हर साल हर समय में
ये रेनी सीजन में हमेशा ऐसा रोड ब्लॉकेज होते रहता है। तो अभी भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ में पूरा ये जो गिर के बहता है, आदमी लोग जैसे तैसे पैदल से पार हो रहा है। और इसके वजह से अभी हम लोग कैपिटल को कम से कम 1 महीना जैसा कट ऑफ होगा। इधर से बांदरदेवा का कोई लिंक नहीं है और एक ही रास्ता है, और उसको हम लोग उस तरफ डाइवर्जन बना रहा है, और डाइवर्जन में भी मतलब मिनिमम 1 मंथ तो लगेगा। भारत सरकार की ओर से तो काफ़ी अरुणाचल प्रदेश के लिए ध्यान देने को अपना डिसीजन ले लिया है, तो अभी पान नहीं दिया जा रहा है, ये बेवकूफ़ी का बात है। सरकार ने रिसेंटली 286 करोड़ रुपए रिलीज किया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और यहाँ की इमरजेंसी के लिए। अब अरुणाचल प्रदेश सरकार इसको मेंटेन करने के लिए नहीं है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से भी काफ़ी फंड आया जाता है। तो यहाँ का अभी सीज़न है, स्कूल्स की सीज़न है, कॉलेज की सीज़न है। जो करसिंगसा बांदरदेवा से नाहरलगुन निरजुली में पढ़ने जाता है, नेरिस में जाता है, निरजुली में, इनके लिए काफ़ी तकलीफ होता होगा। तो राज्य सरकार इसको देख नहीं सकता है, तो केंद्र की ओर फेंकता है। ये बेबुनियाद बात है, हम इसको मानता नहीं है। और ये हर साल का समस्या रहा है, ये करसिंगसा ब्लॉक पॉइंट, ये 1 साल का नहीं, ये 30 साल से चल रहा है, ओवर 3 डिकेड्स। और सरकार को मालूम है ये एक मनी मिंसिंग जो रोड पोर्शन है, सरकार इसको समाधान लेना नहीं चाहता है अरुणाचल सरकार। एक खबर अब हरियाणा से लेते हैं। हरियाणा के होडल में बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने वाले को सजा दिलाने के लिए जाटव सभा ने 24 अगस्त से लगातार धरना प्रदर्शन कर रखा है। ईस्टर्न स्काई मीडिया ने जाटव सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश रावत से भी बातचीत की। आइए देखते हैं ओम प्रकाश रावत ने क्या कहा इस मामले पर। जैसा कि होडल के पास में एक डाट का गांव है, वहां से बाबा साहब की प्रतिमा को 10-15 लोग अपने हथियारों के बल पे पहले उसको तोड़ दिया गया, फिर उसको उखाड़ कर वहाँ से ले गए, जिसकी हमने पुलिस प्रशासन को कार्रवाई की, रिसीव बाई नेम शिकायत की, परंतु पुलिस इतनी गद्दार निकली, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 4 तारीख को हमने एसडीएम महोदय होडल को ज्ञापन दिया, उन्होंने पुलिस के लिए भी आदेश किए, परंतु उस पर भी कोई एक्शन नहीं ले पाए। दिनांक 6 अगस्त को हमने उचित अधिकारियों को बाई पोस्ट हमने दरखास्तें भेजी, तब उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमने अपनी जाटो समाज के लोग इकट्ठे किए, हमने उसमें निर्णय लिया कि अगर यहाँ की सरकार या यहाँ के हरियाणा के अधिकारी बिल्कुल मूक दर्शन करके बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम केंद्र के दरवाजे खटखटाएंगे, हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय के दरवाजे पर पहुँचेंगे, अपनी वहाँ हम मांग रखेंगे। अगर वो भी हमारी डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं, हमारे बाबा साहब के मान सम्मान में वो भी ठेस पहुँचाते हैं, तो हम इसमें भूख हड़ताल पर बैठेंगे, चाहे हमें कितने लंबा संघर्ष करना पड़े। ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन की जनरल बॉडी मीटिंग में नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए टोक बुतुम। टोक बुतुम ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के राष्ट्रीय सचिव होने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश कैथोलिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। टोक बुतुम को राज्य में गरीब बच्चों की शिक्षा में समर्थन के निस्वार्थ प्रयास के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करते हुए टोक बुतुम ने बताया कि वो और उनकी टीम हमेशा ही अरुणाचल प्रदेश के बेहतर के लिए काम करती रहेगी। ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष टो तेबिन ने भी ईस्टर्न स्काई मीडिया से कुछ बातचीत की। क्रिश्चियनिटी बनने से अपना आइडेंटिटी खो गया बोलता है, ऐसे बात नहीं है। सबसे पहले देखिए, हम जिस भगवान को भी मानता है तो हम एक भगवान को मानना है, जिसको भी हो। जैसे हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन है तो हम क्रिश्चियन का यीशु मसीह को मानना है और ईश्वर को मानना है। सबसे पहले अपना आप में विश्वास होना है। आपका दिल में अगर विश्वास होगा तो आपका परिवार में शांति होगा। जब तक आप विश्वास नहीं होगा तो आप जो भी धर्म में जाइए, आपका घर में और आपका दिल में शांति कभी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले विश्वास होना है। हम आइडेंटिटी को हम क्रिश्चियन लोग नहीं खोया है। हम सुधरने के लिए जो खराब आदत है, खराब चीज़ है, उसको छोड़ के
हम अच्छा चीज़ को अपनाना है, यही मेरा सोच है। ऑल इंडिया कैथलिक यूनियन जो वो एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा एक संगठन है। तो इस बार अरुणाचल प्रदेश से हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और साथ साथ हम लोगों को एक काम सौंपा है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में यहाँ 8 स्टेट है, 8 स्टेट के अंदर में हमारा जो धर्म का काम जो जो विश्वासी लोगों के लिए जो काम है वो हमें सौंपा गया है कि हमारे अंदर में, हमारे प्रदेश के अंदर में ऐसे कई काम है जो समाज को हम एक अंधेरा से एक उजाला में हम ले जाने का हमारा जो धर्म उसका लिए खास काम करते हैं, समाज का ज्ञान के लिए। उसके बाद में आपका जो पढ़ाई लिखाई का जो ज्ञान के लिए। अच्छा बात यह है हम लोग का जो सपना है वो आज पूरा होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि एक समय था कि अरुणाचल में मिशनरी लोग को काम करने नहीं दिया था, लेकिन मिशनरी नहीं आने से हमारा समाज जो सबका पीछे रह जाता है। एक खबर अब दिल्ली से लेते हैं। दिल्ली में बैटरी रिक्शा चालक संघ का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सरकार बैटरी रिक्शा चालकों को रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं देती है, यह आंदोलन जारी रहेगा। आइए देखते हैं प्रदर्शन का एक हिस्सा। हम लोग चाहते हैं जितना बैटरी रिक्शा भाई जो रोजगार थे, इनका रोजी रोटी चल रहा था, जो कोर्ट का प्रतिबंध लगा दिया गया, उस कानून को जो कोर्ट कहती है कि इनको कानून बनाया जाए और कानून के दायरे में रखा जाए, तो ये बैटरी रिक्शा चलाने की परमिशन दिया। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, नितिन गडकरी से भी अनुरोध करते हैं, जो आपने अलाउंस 17 जून को रामलीला मैदान में अलाउंस किया था, हम लिए इनके नियम कानून बनाएंगे, उस नियम कानून बनाकर कोर्ट में आप पेश कीजिए और उस कानून बनने के बाद जो भी टाइम लगता है 1 महीने 2 महीने कोर्ट से समय ले लें और तब तक इन बैटरी रिक्शा भाइयों का बैटरी रिक्शा चलने की अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार पे है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ही देश में त्रिपुरा सरकार ने इसी बैटरी रिक्शा पर एक कानून बना रखा है। वहाँ पर ये बैटरी रिक्शा कानून के तहत चल रही है। बुलंदशहर के अंदर यही बैटरी रिक्शा पंचायत के तहत 10 रुपये की नगर पालिका की पर्ची कटती है, रिक्शा चल रही है। काशीपुर के अंदर 5 रुपये की पंचायत की पर्ची कट रही है, यही रिक्शा चल रही है। एक ही देश के अंदर कई कानून कैसे हो सकते हैं? हमारी ये सोचना है। नितिन गडकरी जी अगर हम लोगों को ना कहते, तो नितिन गडकरी जी कहने के बाद हम लोगों ने रिक्शा खरीदा, तो इसका क्या उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? क्या उन लोगों ने हमारे साथ छलावा नहीं किया? क्या धोखा नहीं दिया हमें? नहीं, मुझे तो यही कहना है कि मुझे कल पे ही 100% भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार को इतना ज़रूर मानवता के नाते इतना ज़रूर देखेगी कि कल के बाद समय दूसरा दिन ना आवे। और यदि कल के बाद कोई दूसरा दिन आता है तो उसके लिए अब सोचने का तो कोई शब्द हमारे पास है नहीं जो क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये बहुत ही बड़ी बात होगी हमारे लिए। लेकिन मैं सरकार से आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहेंगे कि कल के बाद मुझे परसों का दिन मत दिखाइए, परसों का दिन मुझे रिक्शा पर बैठे हुए दिखाइए। यदि आपकी ये देश की अच्छी संदेश देना है, अच्छे दिन आने का है, तो कल के बाद का दिन भगवान पे छोड़ दीजिए। कल तक के लिए आप उनके पास मेरा दिन है और मैं बस यही कहूँगा, कल के बाद वाली बात ना तो आप हमसे पूछिए, वो तो देखेंगे बाद में। अरुणाचल प्रदेश के तेजू में बनने वाले तिब्बतन कारपेट्स की कई जगहों पर मांग है। गुवाहाटी, दिल्ली, लद्दाख और कई राज्यों में भेजे जाते हैं तेजू से कारपेट्स। तेजू के धार गेलिंग तिब्बतन सेटलमेंट में तिब्बत के लोग बेहद ही खूबसूरती और प्यार से कारपेट्स बुनते हैं। इनके द्वारा बनाए गए कारपेट्स में बहुत अलग अलग डिजाइन दिए जाते हैं, जैसे कई कारपेट पर ड्रैगन, फोनिक्स और बादल दर्शाए जाते हैं। इन कारपेट के दाम 1200 रुपए से लेकर 24,000 तक होते हैं। यहाँ पर बनने वाले कारपेट्स की मांग कई राज्यों में है, जैसे दिल्ली, गुवाहाटी, लद्दाख के साथ साथ कई राज्यों में यहाँ से कारपेट भेजे जाते हैं। तेजू धार गेलिंग तिब्बतन सेटलमेंट की शुरुआत 1964 में 1240 तिब्बतन्स के साथ हुई थी और अब यहाँ की पॉपुलेशन 1500 से भी ज्यादा है। जाएगा कल। तेजू हेडक्वार्टर में तिब्बतियन सेटलमेंट में बस रहे तिब्बतियन लोगों ने अपनी अलग ही एक दुनिया बसा रखी है। यहाँ पे इन्होंने
अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सीरियस इशू को सॉल्व करने के लिए कारपेटिंग का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है। यहाँ के कारपेट जो कि पूरे भारत में और इंटरनेशनली भी बहुत फेमस है। आईएएस के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ है वांगमू जी, जो यहाँ पे एक शोरूम, कारपेट के जो शोरूम है यहाँ पे काम करती है। इनसे बात करते हैं। पहले आप हमें ये बताइए कि ये शोरूम कब शुरू हुआ? 1976 में शुरू हुआ था। अच्छा, इसको कौन लोग इनिशिएट करके स्टार्ट किया? यहाँ में हम लोग का बड़ा बड़ा आदमी लोग और हमारा सेक्रेटरी साहब लोग और हम लोग का पब्लिक लोग सब मिल के हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी खुला हुआ है। उसी में हम लोग शोरूम, इंडस्ट्री, कारपेट बना जाता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ का कारपेट तो बहुत फेमस है, तो यहाँ पे ये कारपेट आता कहाँ से है? कारपेट तो हम लोग यहाँ में बनाता है, उल तो हम लोग दूसरा जगह से मंगाता है। और कारपेट सेल ईटानगर, दिल्ली, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, कहाँ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का कारपेट सप्लाई होता है। अच्छा, आप लोग खुद से कारपेट बनाते हो? यहाँ पे कोई वीविंग सेंटर है? आप ट्रेनिंग किसी को देते हो? ट्रेनिंग अपना जो सीखना चाहता है उसको 3-3 महीना ट्रेनिंग दिया जाता है। और यहाँ खुद बनाने वाला तो हम लोग का खुद का टिबेटियन आदमी लोग अपना जोर लगा के कारपेट बना रहा है। अच्छा, ये आप किस तरह के आप रेट बता सकते हो कारपेट को, कैसे आप बेचते हो मार्केट पे? हाँ, रेट तो बता सकता है कि स्क्वायर फीट का हम लोग का 100 प्लाई बोल के एक ठो होता है और 60 प्लाई बोल के एक ठो होता है। 100 प्लाई का 482 और 60 प्लाई का 440 में सेल होता है एक स्क्वायर फीट में। कारपेट्स बनाने के बाद में जो आप लोग का यहाँ पे इनकम आता है वो आप लोग के लिए सफिशिएंट होता है खुद का ये घर को चलाने के लिए बजट का हिसाब से? हम लोग का कारपेट बना के जितना सेल होता है हम तो सिर्फ सेल करता है, उसका बाद पैसा तो ऑफिस में जमा हो रहे हैं। उसका बाद साल लोग क्या करता क्या नहीं करता। हम लोग का शोरूम में जितना इनकम है साल में मास पेंडिंग में होता है, सब जगह में सप्लाई होता है। कितना लाभ होता है तो ऑफिस वाला मालूम होगा। सिक्किम के नेशनल हाईवे 31 पर रोजाना बेचे जाते हैं 100 से 200 मकई। इस छोटे से व्यापार से एक सीजन में 1000 से लाखों तक कमा लेते हैं यहाँ के दुकानदार। सिक्किम में मकई बेचने का छोटा सा व्यापार कुछ लोगों के लिए आमदनी का बहुत अच्छा जरिया बन गया है। ये लोग नेशनल हाईवे 31A पर बुना हुआ मकई बेचते हैं। हाईवे से रोजाना हजारों गाड़ियां गंगटोक से सिलीगुड़ी के लिए गुजरती है और ये भुने हुए स्वादिष्ट मकई लोगों के लिए स्नैक का काम करते हैं। मक्के को पहले स्टील वायर के ऊपर रखा जाता है और उसके बाद इसे लकड़ी पर भुना जाता है। मकई बेचने वाले ये सभी लोग रोजाना करीब 100 से 150 मकई बेचते हैं और कभी कभी तो ये आंकड़ा 200 तक भी पहुंच जाता है। एक मकई का दाम 10 रुपए है और इसी से ये एक सीजन में अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। टूरिस्ट्स को लुभाने के लिए सिक्किम में खोला गया एक और कैसीनो। पूर्ण लाइसेंस के साथ पहला लैंड बेस्ड लाइव 5 स्टार कैसीनो है महजोंग। सिक्किम में टूरिस्ट को लुभाने के लिए एक नया कैसीनो खोला गया है। गंगटोक से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर रानीपुल में कैसीनो महजोंग खोला गया है। वैसे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा टूरिस्ट सिक्किम में ही आते हैं, लेकिन राज्य सरकार की एक कोशिश है कि टूरिस्ट की संख्या को और भी बढ़ाया जाए। सिक्किम का ये दूसरा कैसीनो है। इससे पहले 2009 में गंगटोक में होटल रॉयल प्लाजा में सबसे पहला कैसीनो खोला गया था। कैसीनो महजोंग पूर्ण लाइसेंस के साथ लैंड बेस्ड लाइव 5 स्टार कैसीनो है। इस कैसीनो में हर तरह की गेम है और वो सब है जो टूरिस्ट को नाराज नहीं करेगा। Basically is a rich man's game. You see, it is not for the mass tourism. It is a high-end tourist who has got enough of money, which gets spilled out. It is going to give a boost to tourism, that's for sure, because India is a growing economy. We have got plenty of money. When you go to casino, the father may be playing roulette, somebody will be playing kitty, somebody playing blackjack, and the children can also play slot machines. Sometimes they win, sometimes they lose. But the spouses,
they will be going to tour other spots. Transporters, they have some scope to provide services. आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।